भरोसा था बैंक के ऊपर, अभी ये बैंक ही उठ गए तो हम बड़ी बैंक में भरोसा कैसा करेंगे? क्यों रखे उधर भी पैसा? बैंक वाले बोलते हैं कि अभी कुछ पैसा मिलेगा नहीं, 6 महीना तक पैसा की गारंटी नहीं। कोई कुछ बोला नहीं, कल पैसा डाला तो कोई कुछ बोला नहीं, कल डाल के गए पैसा, ये 60,000 डाल के गए, मैं 10,000 डाली, कुछ बोला नहीं। तो एक प्रॉब्लम वो भी हो रही है कि वो लोग बता भी नहीं रहे हैं कि वो लोग कितने दिन कैसे ऑपरेट करने देंगे। हमारा पैसा तो बोलते दो तीन महीने बाद में मिलेगा, वो मिलेगा क्या नहीं मिलेगा किसको मालूम। पब्लिक को रोज परेशानी है बैंक की तरफ से, और कुछ नहीं है। A devastating financial scam has shaken Maharashtra, leaving thousands of innocent depositors in distress. Their hard-earned savings are now at risk due to deep-rooted corruption between influential builders and cooperative banks. The arrest of Mumbai builder Dharmesh Paun has once again exposed the alarming nexus between real estate developers and financial institutions, particularly New India Cooperative Bank. This meticulously planned fraud, carried out over more than 5 years, has shattered the trust of countless individuals who relied on the bank for financial security. Among those affected are senior citizens, small business owners, and families who now face an uncertain future. Here's a detailed report on how this scam unfolded and the lives it has impacted. In a shocking revelation, rupees 122 crores were reportedly siphoned off from the New India Cooperative Bank. This massive amount was siphoned by the general manager and chief accountant Hitesh Mehta. Out of those 122 crores, with nearly rupees 70 crores has been routed to Dharmesh Paun, a prominent builder in Mumbai. Authorities believe this massive fraud was orchestrated over a long period, exploiting loopholes within the cooperative banking system. Let's hear from Mangesh Shinde, DCP, Economics Offences Wing, Mumbai Police. इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर देवर्षि घोष, इनके कंप्लेंट के ऊपर आज सुबह मुंबई पुलिस ने दादर पुलिस स्टेशन में इसी बैंक के जो जीएम अकाउंट्स है हितेश मेहता, उनके ऊपर ऑफेंस रजिस्टर कर दिया गया है। इस ऑफेंस में उनके ऊपर एलिगेशन है कि उन्होंने बैंक के 122 करोड़ रुपए का मिस एप्रोप्रिएशन किया है और उसके रिलेटेड आर्थिक गुने शाखा इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग मुंबई पुलिस में उसका आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, इस मामले में हितेश को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है, बेसिक जानकारी क्या है? अभी के वक्त में अभी हितेश मेहता जो है उनका अभी स्टेटमेंट लिया जा रहा है और बाकी जो आगे का जैसे जैसे आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा तो उस अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। Meanwhile, Hitesh Mehta's representative, Advocate Chandrakant Ambani, has accused the RBI, stating the entire procedure of regulations which were violated over the years. He says that it is not possible that just his client could do the entire embezzlement in cash by himself, and that RBI has imposed the latest restrictions based on the RBI audit just to cover their skin. Let's hear from Advocate Ambani. RBI audit. अब अगर इसमें आप बोलोगे तो इक्वली RBI is at a greater fault. They did it to save their skin. वो लोग ने अपनी चमड़ी बचाने के लिए ब्लेम ढकेल दिया है बैंक के ऊपर और रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिए ताकि दिखाने के लिए कि भाई हमने अपना काम कर दिया। बट अगर आप बैंकिंग रेगुलेशन के मुताबिक देखो, स्ट्रिक्ट बैंकिंग रेगुलेशन के मुताबिक RBI is duty bound to do the audit of every bank. Bank means bank, not a branch. इनके 23 ब्रांचेस थे, 23 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया। जैसे महाराष्ट्र में ब्रांचेस है, बॉम्बे में ब्रांचेस है, पुणे में ब्रांचेस है और एक ब्रांच उनका सूरत में है। ठीक है, एक ब्रांच उनका सूरत में है। तो RBI बैंक की ऑडिट कंडक्ट करती है और वो ऑडिट के प्रोविजंस जो एज पर बैंकिंग एक्ट एंड रेगुलेशन, what I know and I can say is
RBI can conduct the audit every month, every 3 months, every 6 months, every year, or every 2 years. But technically they are duty bound to conduct the audit of every bank at least once in 2 years. Now, जब एलिगेशन 2020 से लेकर 2025 तक का एलिगेशन जब किया हुआ है, वो भी कैश एम्बेजलमेंट का, मतलब कैश चोरी का, तो यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स आते हैं. पहली चीज तो 20 से 25 तक 5 इयर्स का पीरियड हो गया. अगर 2 इयर्स का भी हम लोग मैक्सिमम स्पैन गिने जिसमें आरबीआई ने ऑडिट करना जरूरी है, तो 2 स्पैन तो अपने आप निकल गए. कहां थी आरबीआई? और अगेन एडिशनली टेलिंग, आरबीआई ने इसी बैंक के ऊपर फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस फाइन भी इंपोज किया हुआ रिसेंटली, अ फ्यू मंथ्स बैक. तो जब उनके पास ऑलरेडी ये इश्यू था कि कंप्लायंस में लैप्सेस अगर बैंक के ठीक है, देन व्हाई डिडंट आरबीआई कंडक्ट एन ऑडिट? और जब फाइन लेवी किया तो ऐसी मर्जी से तो फाइन लेवी नहीं किया होगा, कुछ ना कुछ होगा ना. देन व्हाई डिडंट दे गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट? थिंग नंबर 1. 2 ऑडिट्स वो लोग के मिस हो गए. और अभी सडनली कुछ वजह हुई तो वो लोग आ गए, वो लोग ने फटाफट अपना ऑडिट कंडक्ट किया, उठा के रिपोर्ट बना के दे दिया, इतना कैश एम्बेजलमेंट, मतलब कैश की चोरी है. ठीक है, अब कैश की चोरी है तो फिर यहाँ पे और एक दूसरा पॉइंट आता है. बैंक है तो बैंक के अंदर मल्टीपल टाइप के ऑडिट्स होते हैं, और हर एक ऑडिट के लिए सेम ऑडिटर नहीं होता, अलग अलग ऑडिटर्स होते हैं. पहले होता है इंटरनल ऑडिट, एक होता है कंकरेंट ऑडिट. कंकरेंट ऑडिट ये होता है जो रेगुलर बेसिस पे होता है, रेगुलर बेसिस पे ब्रांच वाइज ऑडिट होता है. इंटरनल ऑडिट होता है वो जनरली बैंक्स एक्सटर्नल सीएजी रखते हैं जो रूटीन बेसिस पे ऑडिट करते हैं. और थर्ड होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, जिसको हम लोग एनुअल ऑडिट बोलते हैं. अब एनुअल ऑडिट में कंकरेंट ऑडिटर भी अपना रिपोर्ट देता है, और वो ऑडिट रिपोर्ट जो कंकरेंट ऑडिटर देता है रेगुलर बेसिस पे ऑडिट, वो भी रिपोर्ट आरबीआई में फाइल होती है. तो इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट भी फाइल होती है, उसकी भी रिपोर्ट बनती है बाकायदा. एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर. अब 2020 से हम लोग 2025 तक गिने, ठीक है, तो मोटा मोटी 5 साल हो गए. 2020 ईयर एंड, 2021, 22, 23, 24 और 25. चलो 2020 का ईयर एंड को एक बार छोड़ देंगे, चलो अप्रैल मई में शुरू होगा, मान के चलते 2 मिनट के लिए, तो भी 4 ईयर तो पक्के हो गए. चारों ईयर में वो लोग के जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, इंटरनल ऑडिटर्स, सबने अपना रिपोर्ट साइन करके दिया. दे आर ऑल क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. अगर कैश एम्बेजलमेंट है तो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक क्वालिफिकेशन रिमार्क आना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं एक जैसे लैप्स. एंड ऑडिटर इज supposed to and duty bound to mention that qualification. It is not his responsibility to locate and recover the cash or suggest recoveries. It is not his responsibility as an auditor, but he is duty bound to mention it in the P&L account balance sheet. मतलब जो भी इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस, ऑडिटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है उसमें. अब हम लोग 4 साल या 5 साल गिने, किसी भी साल में ऑडिटर का एक हल्का सा एम्बेजलमेंट की तरफ कोई इंडिकेशन भी नहीं है. क्वालिफिकेशन तो बहुत बड़ी बात हो गई, इंडिकेशन भी नहीं है. और कैश बैलेंसेस बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, दिखाया हुआ है कैश बैलेंसेस, और वही इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बैंक के सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर और वो लोग ही साइन करते हैं. इवन दो माई क्लाइंट बीइंग अ जनरल मैनेजर एंड ऑल्सो नेम्ड सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, he has never signed any balance sheet because he didn't have the authority to sign the balance sheet, but it was signed by the CEO. जो कंप्लेनेंट सीईओ बैंक की तरफ से, सीईओ साइन करते हैं, एमडी साइन करता है, डायरेक्टर साइन करते हैं. और कैश का 2 तरीके होते हैं. ऑडिटर इज ड्यूटी बाउंड टू वेरीफाई द कैश.
may it be in detail or may it be on random basis, but he is supposed to verify the cash under the audit procedures of the Institute of Chartered Accountants of India, and then mention is thing number 1. और thing number 2, मान लो अभी वो डायरेक्टर ने या मैनेजर ने या सीईओ ने बोला कि यार इतना कैश कौन की नहीं है, वो हम लोग अपने सर्टिफिकेट देते हैं विच इज कॉल्ड एज सर्टिफाइड बाय द मैनेजमेंट, जो टेक्निकली रॉन्ग है ऑडिटर का, बट सर्टिफिकेट लिया तो सीईओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देगा, तो वो लोग ने सर्टिफिकेट दिए, क्यों दिए? अब आप 122 करोड़ रुपया गिने और हम लोग 5 years गिने जो लोग ने क्लेम किया है, हालांकि 25 तो अभी 2 ही महीना हुआ है, ठीक है। अगर 122 करोड़ का मैं 5 साल 20 का भी पूरा साल गिनूं, 20, 21, 22, 23, 24 5 साल गिनूं, तो व्हाट इज द एवरेज अमाउंट पर ईयर? यू नो अराउंड 20 crore 50 lakhs. If it is 20 crore 50 lakh rupees per year, किसी साल में ज्यादा होगा, किसी साल में कम होगा। और शुरू में आदमी हिम्मत नहीं करता, अगर किसी को तो शुरू में थोड़ा थोड़ा होता है, बाद में हिम्मत बढ़ती है। तो अगर मैं एवरेज गिनूं, पिछले अगर 3 साल में 24 करोड़ रुपया अगर निकला, कोई भी अगर बोले तो महीने का 2 करोड़, व्हाट इज दैट पर डे, पर वर्किंग डे? अराउंड 9 लाख रुपीज। 9 लाख रुपीज कोई आदमी अपने जेब में डाल के लेके नहीं जाएगा, और 9 लाख रुपीज इंटू 25 वर्किंग डेज, 2 करोड़ रुपया अगर बैंक के लॉक इससे सेफ से चला जाता है, तो ब्रांच मैनेजर जो भी है कैसे हो रहा है? Following extensive investigations, law enforcement agencies arrested Hitesh Mehta and Dharmesh Pon in connection with the scam. Officials are now probing their links with other bank executives and entities that may have contributed and facilitated this fraudulent transfer. Thousands of depositors who had their life savings and fixed deposits in the bank have been left distraught as they now face the possibility of losing a significant portion of their money. Let's hear from the victims now. घर का खर्चा निकालने के लिए भारी पड़ रहा है। मेरा घर का खर्चा, यहाँ से पैसा निकाल के मैं अपने घर का खर्चा चलाता हूँ। अभी बैंक बंद होता है, मुझे पैसे का बहुत वांधा हो रहा है। अभी जिस तरह से अभी कुछ फंक्शन रहेगा, हाँ फंक्शन है, इसके लिए भी पैसा चाहिए, बच्चे का फीस भरना है, अभी इसके लिए भी पैसे की बहुत जरूरत है। तो क्या बैंक की तरफ से क्या कहा है? बैंक वाले बोलते हैं कि अभी कुछ पैसा मिलेगा नहीं, 6 महीना तक पैसा की कुछ गारंटी नहीं। 6 महीने के बाद में हम लोग बोलेंगे कि पैसा देने वाले। दिक्कत हो रही है, बंद हो गया, दिक्कत होने वाला है ना। आज पैसा निकालने का था, नहीं निकाला, अभी हम चेक भरा है, पास होगा कि नहीं क्या मालूम। अभी सबको दिक्कत है, देखो आप देख रहे हैं, वो सब पब्लिक परेशान है। बैंक की तरफ से क्या कहा गया है? बैंक की तरफ से ही है ना, बैंक मैनेजर से बात हुई है या बैंक? हमारा नहीं हुआ बात, हम गांव से कल ही आए हैं, आज ही आए हैं समझो। तो हमको मालूम पड़ा तो हम आ गए। कितना अमाउंट है बैंक में आपका? बैंक में अमाउंट ज्यादा नहीं है, हमारा 1 लाख का ये है और 15-16 हजार का FD है और लॉकर है हमारा। दिक्कत है, यानी हमारा अकाउंट ही 1982 से इतना भरोसा था बैंक के ऊपर, अभी ये बैंक ही उठ गए तो हम बड़ी बैंक में भरोसा कैसा करेंगे? क्यों रखे उधर भी पैसा? आप मेरी बात समझो, क्योंकि इतनी छोटी बैंक हम लोग को रात को 7 बजे जब जी न्यूज पे देखते हैं तब मालूम पड़ता है कि भाई ये उड़ गई है। तो बाकी पब्लिक का पैसा हम लोग तो चलो थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, जो गरीब आदमी बेचारा जाएगा कहाँ पर? वो हम लोग, मेरा यहीं पे शॉप है, मैं छाया मेडिकल का दुकान चलाता था, अभी बंद हो गई, लेकिन हम यहाँ मैनेजर हमारे पास आए थे बैंक अकाउंट के लिए, इतने हम लोग जुने पहचानते हैं यहाँ पर। नहीं, अभी कोई बात नहीं, किसी से बात नहीं। हम लोग को मालूम पड़ा तो हम लोग कल से, अब तो आज सवेरे लाइन में खड़े रह गए भाई लॉकर। बैंक की तरफ से कोई मैसेज नहीं है, खाली इतना मालूम है अभी लॉकर खोल के अपने को जो अपना सामान देगा निकाल के लेके जाओ। नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई मैसेज नहीं। भी प्ले कर दिया है, कॉल भी प्ले किया, पता था ना इन लोगों को, कॉल भी प्ले किया है, इसका 60,000 मेरा 10,000, क्यों प्ले किया? बोलने का ना था, ऐसा है। मैसेज भी नहीं दिया, अभी मैसेज देखा तो सुबह 9 बजे मैसेज डाला है, ये क्या है? इतना हम लोगों का MD है, सब लॉकर पे सब है, कुछ
कैसे करेंगे? एक तो कल से ही रात से ही सबको न्यूज आया है, किसी को भी कुछ भी ट्रांजैक्शन करने का भी मौका नहीं मिला है। अभी फिलहाल लॉकर एटलीस्ट ये लोग ऑपरेट करने दे रहे हैं, बट उसके लिए भी जैसे आप देख रहे हैं बहुत बड़ा लाइन है। तो मैं तो अभी 1 घंटा और 1.5 घंटा हो गया है ऑलरेडी, बट काफी लोग सुबह से खड़े हैं लाइन में। तो एक प्रॉब्लम वो भी हो रही है कि वो लोग बता भी नहीं रहे हैं कि वो लोग कितने दिन कैसे ऑपरेट करने देंगे। अगर एक टाइमलाइन गाइडलाइन दिया जाए तो लोगों को समझेगा कि हमें इतने दिन एटलीस्ट ये ऑपरेशंस करने मिलेंगे। अभी बहुत सारी भीड़, सब लोग पैनिक हो रहे हैं मेन तो ज्यादा। कुछ नहीं आया है। कल भी जैसे आप लोग सुन रहे हैं कि लोगों के पैसे ऑलरेडी डिपॉजिट उन्होंने ले लिए हैं और ट्रांजैक्शंस कुछ भी नहीं हो रहे। कल रात को भी हम लोग ने इंटरनेट बैंकिंग ट्राई किया, मोबाइल ऐप का ट्राई किया, कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे। तो बहुत दिक्कत आ रही है लोगों को। And how can we not add up a party point of view here? Because where there is a scam, there's a party name to be dragged along. This time, it is Sanjay Raut, MP Maharashtra from Shiv Sena, who has accused the Bharatiya Janata Party of taking over a well-reputed bank like the New India Cooperative Bank and ruining it, making it a source to defraud and rob people. Let's hear from Raut. न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, ये बैंक बहुत ही प्रतिष्ठित बैंक, बड़ी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, शेड्यूल बैंक है। मेरे हिसाब से जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे उस वक्त मुंबई में, वो लेबर लीडर थे, काम करते थे और टैक्सीमन यूनियन चलाते थे, उनके लिए बैंक बनाई थी। और ये बैंक आप बीजेपी के लोगों ने अपने कब्जे में लेकर बहुत ही गलत तरीके से लोगों को कर्जा दिया, अपने लोगों को, सभी जिसने बैंक लूटी है। ये 150 करोड़ का घोटाला है लगभग, कम से कम। As per the current deposit insurance scheme, depositors can only recover up to 5 lakhs regardless of the actual amount they have deposited in the bank. This has triggered widespread concerns, especially among middle-class families and senior citizens who relied on the cooperative bank for safe savings. Many depositors have demanded government intervention to recover their hard-earned money. The New India Cooperative Bank scam serves as a stark reminder of the vulnerabilities within the financial system. With depositors still uncertain about the fate of their savings and government agencies tightening their probe, the focus now shifts to enduring justice for those affected and preventing similar scams in the future. This is the Seerat Kaur, and we will keep you updated as more developments emerge only at The Savera. Subscribe to our Facebook, YouTube, Twitter and Instagram handle, and don't forget to download the Savera app.